to my YouTube channel. This is my third lecture on the differential equation. In last two classes I have taught you guys what is differential equation, what is ordinary differential equation, what is order and what is degree. In my second class I have taught you guys how to solve differential equation of first order and first degree using variable separable method. In this lecture I will be teaching you how to solve linear differential equation. Okay, so first of all I will be teaching you the general form of linear differential equation. If any equation looks like this category, dy by dx plus pxy equals to qx, or dx by dy plus pyx equals to qy, then this particular equation is linear differential equation. Okay, so in first case this is linear to y, this is linear to y, and in second case this is linear to x, this is linear to x. Okay, again I am repeating, dy by dx plus px. Okay, so this is the independent variable and this is the dependent variable. Okay, so px should be there into y equals to qx. So this is linear to y and this is a linear differential equation. The second equation is dx by dy plus pyx equals to qy. This is also a linear differential equation, but it is linear to x. Okay, so if this is the case, then what is the integrating factor of the differential equations? So first of all, what is integrating factor? Integrating factor is a function which often selected to solve the differential equation. Okay, so this is so in this case, this for this this is 1, okay, and this is 2. Okay, so for first differential equation, the integrating factor is e to the power integration of px dx. In first differential equation, the integrating factor is e to the power integration of px. So whatever this px will be there, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे px dx. And for the second differential equation, as you all can see, this is linear to x, so यहाँ पे py होगा. So integrating factor equals to e to the power py dy. So ये होगा हमारा integrating factor. So ये होगा हमारा basic of how to solve linear differential equation. So let us take few examples. उसके बाद हम लोग clear हो जाएंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ओके, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो एग्जांपल इज दिस, dy upon dx minus y by x equals to 2x square, और यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है x is greater than 0. ओके, सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, as you all can see, this is a form of linear differential equation. तो हमारा px क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में है, dy upon dx plus pxy equals to qx. ओके, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है. तो इसको इसके तरह कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे px क्या होगा? तो as you all can see, px y से इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे y के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -1/x, है कि नहीं? यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1/x. तो px मेरा निकल गया ये. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, राइट? एक हमारा फॉर्मूला. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx. तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. तो इंटीग्रेशन अपॉन -1/x का होता है क्या? इंटीग्रेशन log x हो जाता है, log x. और माइंडेड, जब भी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ऊपर प्लस कांस्टेंट नहीं लगाते हम लोग, ये एक रूल है, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाएंगे हम लोग. तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा. ओके, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/x क्यूब. इफ यू हैव डाउट सो देख लो यहाँ पे
मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को दिमाग में करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने इतना लंबा टाना क्योंकि फर्स्ट ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इतना लंबा टाना है, ना तो मैं जनरली इतना लंबा नहीं टानता हूँ कुछ क्वेश्चंस को। ओके देन, सो ये क्या होगा है, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा log x के ऊपर -1। ओके, सो e और log कट जाएगा और 1/x रह जाएगा, तो यहाँ पे 1/x है। अभी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को मिल गया है 1/x। अभी क्या करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बाय multiplying 1/x on both side of given differential equation। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो क्या रह जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x इंटू dy अपॉन dx माइनस 1/x इंटू y बाय x इक्वल्स टू 1/x इंटू 2x², ऐसे कुछ हमारा आ जाएगा। ओके, सो इफ आई रब दिस, यहाँ पे बहुत स्पेस रह जाएगा हमारे पास। तो देख लो, एक बहुत अच्छा ट्रिक है, जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के बोथ साइड में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा LHS का जो वैल्यू आता है वो d अपॉन dx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सा भी होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/x इंटू किसके साथ में लीनियर है, y के साथ में लीनियर है, y के रिस्पेक्ट में लीनियर है ये, तो इंटू y हो जाएगा। अच्छे से लिख लेता हूँ, फिर से याद रखना है ये बात, फिर से याद रखना है, जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं d/dx इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा 1/x इंटू जिसके रेस्पेक्ट में लीनियर है, y के रेस्पेक्ट में लीनियर है, तो इंटू y इक्वल्स टू x और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y/x आ जाएगा। ये d अगर उस साइड गया क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन था, उस साइड में गया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 2x और dx ऊपर चला जाएगा dx, ठीक है। सो y/x इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सो y इक्वल्स टू 2x² अपॉन 2 कट जाएगा प्लस c, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा, अगर ये y इक्वल्स टू x इंटू x² प्लस c, y इक्वल्स टू x³ प्लस xc, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर ऐसे नहीं लिखना है, इफ यू डोंट वांट लाइक दिस, सो यहाँ पे इतना तक ही लिख के छोड़ दे सकते हो आप लोग, y/x इक्वल्स टू x² प्लस c, this is my final answer. Hope you have understood how to solve linear differential equation. Okay, so let us take two more examples to be more specified, to be more clear. Okay, so you can screenshot it or you can copy it. This is another example of linear differential equation, the example number 2. Okay, so how to solve this? dy upon dx plus y equals to cos x minus sin x. So as you can see, ये भी हमारा linear की तरह ही है, तो यहाँ पे px खोजना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे px क्या होगा, तो px यहाँ पे देख सकते हो हम लोग कुछ भी नहीं है, तो y से इंटू कौन कर रहा है, y से इंटू 1 कर रहा है, ठीक है। तो px हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, px 1 हो जाएगा। तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, ओके। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, है ना,
वन ने से भी चलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, e टू द पावर x रह जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ये और ये कट जाता है और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा सिर्फ। तो फिर क्या करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। बाय मल्टीप्लाइंग e to the power x on both side of given differential equation। सो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देता हूं तो e to the power x dy upon dx plus e to the power x y equals to e to the power x into cos x minus sin x, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो फिर यहाँ देख सकते हो, मैंने लास्ट एग्जांपल में आप लोग को समझाया था कि whenever we multiply integrating factor to both side of a given differential equation, then we can write the left hand side like this. What we can write, ddx into integrating factor, that is e to the power x into we can write किसके रेस्पेक्ट में लीनियर है, y के रेस्पेक्ट में लीनियर है, इनटू y। तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आईलेट लगेगा, आईलेट अगर नहीं लगाएंगे फिर भी हम लोग, एक रूल पता है हम लोग को, इफ यू ऑल गाइस रिमेम्बर बेसिक क्लास 12 का होगा, अगर e टू द पावर x को हम लोग fx प्लस f डैश x अगर होता है, ये क्राइटेरिया होता है, मतलब e टू द पावर x कभी भी एक फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ अगर इनटू होता है, तो हम लोग इसको e टू द पावर x into fx लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे e टू द पावर x cos x के साथ माइनस sin x के साथ cos x माइनस sin x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में बैठ रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर x into इसका ये फंक्शन cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ओके, प्लस c, ठीक है। वेट अ मिनट, एक थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे छोटा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे उतारना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल cos x माइनस sin x, ओके, ये कब होगा, ये अभी देखिए, अभी क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन है उस साइड जाएगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और e टू द पावर x इनटू y जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, ये डिफरेंशिएशन इस साइड जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये dx ऊपर चला आएगा। अभी हम लोग लिख सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था आप लोग को, sin x dx, ये dx ऊपर चला जाएगा, ये डिफरेंशिएशन इस साइड आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये जहाँ है वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको सिखाया था, देखिए अभी इंटीग्रेशन, ये आप आईलेट नहीं यूज करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आईलेट यूज करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ex इंटू cos x प्लस c लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ ऐसे, बिकॉज ex अगर किसी भी फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ इंटू कर रहा है, तो मैं ex इंटू वो पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x है, तो मैं e टू द पावर x इंटू cos x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर e कट जाएगा, cos x plus c। This is my final answer. Hope you like my content. Let's take one more example of linear differential equation, then we will wrap it up. Okay, thank you. This is the third example of a linear differential equation. So what this example is telling to us, y dx minus x plus 2y square dy equals to 0. So as you can see, this is not
a proper form of linear differential equation. So हम लोग को क्या करना पड़ेगा? We have to convert this equation into linear differential equation. Okay, so क्या करेंगे हम लोग कर सकते हैं ऐसे y dx equals to ये पूरा टर्म अगर उस साइड गया तो क्या होगा? x plus 2y square dy आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे dx ये dy इंटू है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर, ये y इंटू है, नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? सो अगेन dx अपॉन dy इक्वल्स टू, अगर विल सेपरेट दिस तो क्या होगा? x अपॉन y प्लस 2y, क्यों 2y? y और स्क्वायर कट जाएगा तो 2y रह जाएगा, ठीक है? सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट? 2x dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इक्वल्स टू 2y। क्यों ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि देखिए ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, dx अपॉन dy। तो यहाँ पे अच्छा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ क्योंकि ये हमारा प्रॉपर फॉर्म नहीं था, ये हमारा प्रॉपर फॉर्म है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग देख सकते हैं कि dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इक्वल्स टू 2y। यहाँ पे लीनियर टू x है, लीनियर टू y नहीं है, यहाँ पे नीचे क्या है? y है, ऊपर है x, तो ये लीनियर टू x है, ठीक है? तो ये एक हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है लेकिन लीनियर टू x है। सो यहाँ पे हम लोग को py खोजना पड़ेगा, नॉट px, रिमेंबर। ये आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ये बेसिक एक छोटा सा चीज भी वो लोग गलती करते हैं और एग्जाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चंस आ जाता है और वहाँ पे वो लोग मार्क्स कट हो जाते हैं वहाँ पे उन लोग को, ठीक है? तो ये गलती ये नहीं कीजिए आप लोग। ओके, सो यहाँ पे py क्या हो जाएगा? py हो जाएगा हमारा -1/y हो जाएगा। py क्या हो जाएगा हमारा? -1/y, क्योंकि x के साथ इनटू कर रहा है हमारा ये, राइट? -1/y। सो ये तो अभी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, है कि नहीं? माइनस निकल जाएगा, माइनस निकल जाने से -1/y का हो जाएगा log y और आंसर आ जाएगा 1/y, आंसर आ जाएगा 1/y। क्यों? e और log कट जाएगा, ये -1 यहाँ पे पावर में आ जाएगा और -1 e⁻−1 से मतलब 1/y हो जाएगा, तो फिर आंसर मेरा 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये। अभी क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, किसका? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। माइंडेड ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दिस इज आवर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग को खोजना है। सो मल्टीप्लाइंग 1/y टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसको मैंने 1 दिया था, टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो क्या होगा? 1/y dx अपॉन dy माइनस 1/y इंटू x अपॉन y इक्वल्स टू 1/y इंटू 2y। ओके, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। Remember again I am telling you, when we multiply integrating factor to both sides of a given differential equation, then उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वो लिख सकते हैं ddx इनटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1/y इनटू किसके रेस्पेक्ट में लीनियर है? x के रेस्पेक्ट में लीनियर है तो इनटू x हो जाएगा ये, ठीक है? और इस साइड में क्या होगा? y कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब फिर इसको x अपॉन y लिख सकते हैं, dx ऊपर जाएगा और डिफरेंशिएशन इस साइड किया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। हमें क्लियर? ओके, सो x इक्वल्स टू x अपॉन y इक्वल्स टू ये 2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा प्लस c, ठीक है? तो
इतना तक ही आप लोग लिख सकते हैं, और फर्दर अगर आप करना चाहें तो x इक्वल्स टू 2xy प्लस cy, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और माइंडेड यहाँ पे जो c इंटू वाई है ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, ये c इंटू वाई की जगह आप c भी लिख सकते हैं। लास्ट मैंने जो एग्जांपल दिया था वहाँ पे मैंने खाली c लिखा था, तो वहाँ पे आप लोग c ही लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने लिखा वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कोई भी चीज अगर इनटू डिवाइड होगा तो वो भी एक कांस्टेंट ही तो होगा, राइट। सो ये भी करेक्ट है, cy भी करेक्ट है और c भी करेक्ट है, तो दोनों में से कोई भी एक आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद और कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग माय चैनल, लाइक शेयर, और ये चैनल उन लोगों को शेयर कीजिए जो जिसको बहुत नीड है बीएससी मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। ये मेरा थर्ड लेक्चर है ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसे ही मैं दूसरे लेक्चर्स भी लेके आऊँगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करूँगा। उसमें मैं 3-4 क्वेश्चंस ही कवर करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे को आई होप उतना चाहिए भी नहीं। अगर 3 से 4 क्वेश्चंस अगर अच्छे से हो गया तो कोई भी क्वेश्चंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।